related to iron. वेट इनडायरेक्टली आंखों को इफेक्ट करता है। आज एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल बहुत बढ़ गया है एंटी एजिंग की वजह से। There are a lot of things talking about, that if you have numbers, eating healthy and doing eye exercises can reduce it. Is it true? सब मिथ। ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर मैंने आज से मेरी डाइट का ध्यान नहीं रखा तो फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी। आंख के बहुत सारी बीमारियां डाइट की वजह से टल सकती हैं। तो आज हमारा विषय है आई एंड डाइट, और आज हमारे साथ एक बड़ी जानी मानी हस्ती आ रही है, उष्मा छेड़ा, जो बहुत ही पॉपुलर है न्यूट्रिशन जगत में और 18 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ है। एंड शी हैज and treated many people over the last 18 years, and she has 3 centers in Mumbai, and she does international consultations. And today with her loads of experience, आज हम जानेंगे आंख और डाइट के बारे में। Today as an eye surgeon, I just treat with eye drops and treatments and so and so. So today we are talking about a new dimension, which is diet. Yes. So diet is very, very important, and in today's world where everything has gone digital, screen time has increased exponentially. Yeah. So dryness in the eyes has increased a lot, and me talking to the patient just about eye drops and treatment. So Ushma, what do you think about diet? How diet can help us in dry eyes? Yeah. So basically water is the most ignored nutrient. बेचारे को कोई credit नहीं देता है। लेकिन water is the most important thing because I think epithelial cells, it makes it more moisturized. Absolutely. Yeah. So first, how to improve the hydration? First is direct water. You need to at least drink 3 to 4 liters of water. Second is include fluids in the diet. Your dal is there, your chash is there, your fruit juices are there. True. This is how you start including a lot of fluids. So there are a lot of people who have issues with drinking. They don't realize to drink water. So I tell them a simple test of use it as a behavior. So for example, in case if I'm using a particular word, say diet very often, the moment I use diet word, it has to click, I have to drink 2 sips of water. So nice. So this is how my thirst mechanism becomes active. Yeah. So this is a very important thing which you brought out, that hydration. And I would say a hydration of at least 3 to 4 liters is a must, right? Apart from just putting eye drops and warm compresses, treatments on the eye, diet in the form of fluids would definitely help. So Dr. Vaishal, there are a lot of things talking about, that if you have numbers, eating healthy and doing eye exercises can reduce it. Is it true? A very nice question which you asked, which I come across every day. It's a myth. Okay. Diet and exercises definitely do not have any role in controlling eye numbers or increase, because this is partly because of genetics and partly because of too much of near work. Today you see a lot of children using a lot of digital work, and that is increasing their near work, and which is a stimulus for them eyeball to growth. So basically eye numbers are ruled more because of their shape of your eye, the cylindrical number, especially if you have an oval eye, then it's more cylindrical number, and the length of the eye, the more the length of the eye, the more the minus numbers. So diet would not play much role. Exactly. Definitely a healthy diet everyone should have, but so for optimal not functioning, decreasing the numbers. Yeah, it would in no way because control the people numbers. Prolong taking, wearing specs, thinking that yes, the eye number can change. Everyone thinks about just vitamin A and it's about the eye. It's not that. Today there is a lot of talk about antioxidants, and definitely each part of the body using antioxidants helps. It's an anti-aging. So is it for the eyes. आज antioxidants का रोल बहुत बढ़ गया है anti-aging के वजह से. Yes. और आंखों में भी anti-aging, because each part body का एज होता है, और एंटीऑक्सीडेंट एक वेपन है जिससे हम एंटी एजिंग करते हैं. तो आपकी राय में एंटीऑक्सीडेंट्स हम डाइट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? पहले एंटीऑक्सीडेंट का रोल क्या है, जिससे जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस है या इरेगुलर लाइफस्टाइल है, जिससे वो डैमेज हो रहे हैं हमारे सेल्स, उसको ब्रेक करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करता है. सही बात है. एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं?
It is very simple. So some antioxidants के मैं नाम बताऊंगी. जी. First is lutein and zeaxanthin. जी. Very very important for retinal health. Absolutely. Okay? Then vitamin C and vitamin E. जी. हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है, जो ग्लो है, it is related to that. Now everybody knows about it. सही बात Then है. third is your zinc and selenium, जो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता. जी. Zinc and selenium आता है हमें oil seeds, nuts जी. से. जी. So these are all और एक बीटा कैरोटीन जिसको आप विटामिन ए yes, ए बताते हैं. Yes. तो So ये सब एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट है. और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहे जी. तो सिंपल लैंग्वेज में कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलरफुल जितना होगा उतना एंटीऑक्सीडेंट्स होगा और डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर जो मिलता है. से फॉर एग्जांपल इवन कोकोनट वाटर, द मलाई ऑफ कोकोनट, दैट इटसेल्फ आल्सो विल एक्ट लॉट ऑफ ओमेगा 3 टू योर डाइट. सही बात है. तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में वेजिटेबल्स तो लेते ही हैं, पर एक कलरफुल फ्रूट जरूर यूज करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रूट चॉइस कर रही हूँ, मेरे सामने एप्पल है और मेरे सामने पीच और प्लम है, तो मैं पीच और प्लम या पपाया को ज्यादा प्रेफर करूं कंपेयर टू एन एप्पल. ओके, एज सिंपल एज दैट. ठीक. डॉक्टर वैशाल, एक बहुत दिलचस्प क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाली हूँ. हाउ इज वेट रिलेटेड टू आई हेल्थ? जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सो सबसे पहले वेट इनडायरेक्टली आंखों को इफेक्ट करता है. डेफिनेटली. Okay. हाँ, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी वेट से बढ़ते हैं. आज हमारी जीवन शैली वैसी हो गई है, ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है और उसके कारण ओबेसिटी बढ़ती है. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ओबेसिटी के साथ रिलेटेड इज स्लीप एपनिया सिंड्रोम, या मैं कॉमन लैंग्वेज में बोलूं तो स्नोरिंग, नस्कोरिंग. आई के साथ हेल्थ. एब्सोल्युटली. सो ये स्नोरिंग जो हम करते हैं रात को व्हेन वी आर स्लीपिंग, तो उसके वजह से भी ग्लोकोमा जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकता है और बहुत सारे दूसरे एजिंग एक्सेलरेट होता है स्लीप एपनिया से. सो ओबेसिटी इनडायरेक्टली डायबिटीज रिलेटेड आई रेटिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड रेटिनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और स्लीप एपनिया सिंड्रोम क्रिएट करता है. और ये सब रिवर्स हो सकता है. आपने जाना होगा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है अगर आप ओबेसिटी. इजीली. सो डेफिनेटली आई वुड से ओबेसिटी इज द न्यू रूट कॉज फॉर आई प्रॉब्लम्स टू. डॉक्टर वैशाल, ऐसी कौन सी चीजें हैं अगर मैंने आज से मेरे डाइट का ध्यान नहीं रखा, हाँ, तो फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आएंगे? आंख की बहुत सारी बीमारियां डाइट के वजह से टल सकती हैं. उसमें सबसे पहले है कि ड्राइनेस एक टल सकता है अगर आपने फ्लूइड ठीक से पिया और मेंटेन रखा. दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि डाइट में खाना है, बट हमारी जो हैबिट्स है, जैसे टबैको की हैबिट है, वो टबैको की हैबिट हमको छोड़नी बहुत अनिवार्य है. आईज से रिलेटेड है? एब्सोल्युटली, बिकॉज आईज के वजह से टबैको ऑप्टिक नर्व को, रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकता है एंड अ पर्सन कैन गो ब्लाइंड. ब्लाइंडनेस आ सकता है. तो सिर्फ अच्छा खाने से नहीं, मैं ये भी कहूंगा और एम्फसाइज करूंगा, जो हैबिट्स है टबैको की, अल्कोहल की, ये पूरी तरह बंद करने चाहिए. बिकॉज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अल्कोहल एक पैग लिया तो हार्ट के लिए अच्छा है. मैं ये कहना चाहूंगा कि एक पैग या अल्कोहल अंदर जाने से डिहाइड्रेशन पूरा बॉडी में क्रिएट करता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्टली अफेक्ट करता है और सेल्स पूरे शरीर में डैमेज करता है और डेफिनेटली आंख में विजन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. डेफिनेटली अच्छा खाना बहुत जरूरी है, बट हैबिट्स टबैको और अल्कोहल की बेसिकली एब्सोल्युटली वो चेंज करना बहुत जरूरी है.